after Baba Siddiqui, Milind Deora and Ashok Chavan. Another big jolt is likely to hit the Congress party ahead of the Lok Sabha polls. As per sources, senior Congress leader Kamal Nath and his son Nakul Nath are likely to join the Bharatiya Janata Party. When asked about these developments, Kamal Nath did not deny but neither confirmed anything. Meanwhile, Congress leader Jairam Ramesh has stated, and I quote, that I only talk about Kashi Vishwanath and not Kamal Nath. Let's in fact listen in. हाँ, मैं सिर्फ काशी विश्वनाथ की बात करता हूँ, कमलनाथ की नहीं। मैं सिर्फ काशी विश्वनाथ की बात करता हूँ, कमलनाथ की नहीं। All right, we've heard what Jairam Ramesh has stated. Joining us on the broadcast is my colleague Akshit Gupta. Akshit, over to you for more details. Well, yes, amid the strong speculations of former Chief Minister of Madhya Pradesh, Kamal Nath, switching over to BJP, Congress General Secretary Jairam Ramesh has taken a jibe saying that I only talk about Kashi Vishwanath and not about Kamal Nath. Well, this comes, amid there is a strong buzz that Kamal Nath and his son Nakul Nath might switch to BJP. And what we are getting to learn from the sources that he's unhappy with the party leadership. He arrived in the national capital yesterday, and this also comes, close on the heels when the BJP is holding its two-day national convention in Bharat Mandapam in the national capital, and the constituency which is now represented by Kamal Nath's son Nakul Nath, which he earlier used to represent, and there are speculations that he may join BJP, along with his father, if I just also tell you that he hasn't, as of now, resigned from Congress, but sources are telling that he feels that he's unhappy with the party leadership, but Congress has ruled out any kind of possibility, and they have denied reports that Kamal Nath will end his long association with the party. They have also stressed that former Prime Minister Indira Gandhi has called him her third son while campaigning for him in 1979. So, of course, it was quite a hectic political day yesterday because BJP is holding a national convention also in the national capital, and Kamal Nath also arrived in the national capital yesterday. But if this actually takes place, then of course, many experts believe that it will be a very big jolt for the Congress party. All right, Akshit, I would like to thank you, but also let's take in some political reactions. Joining us on the broadcast this morning is Anshu Awasthi, Congress spokesperson, as well as Dr. Avadish Upadhyay, BJP leader. I'd like to first pose my question to Mr. Awasthi. How does the Congress react to these developments? It's of course source-based reports are coming in. These are still murmurs, still rumors. Kamal Nath is still maintaining his silence. He is neither confirmed nor denied anything. So what do you have to say regarding these developments? समय से ही कांग्रेस पार्टी के जो अपने विचार और सिद्धांत रहे हैं वो रहे हैं देश की जो जनता है, आवाम है, उसकी लड़ाई लड़ना। तो हम कभी उससे पीछे नहीं हटे हैं। हमने कभी समझौते नहीं किए। हम जनता के मुद्दों पर है। और अगर आप पिछले 10 साल से देखें तो कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी जो लगातार इतने कट्टरता का जब माहौल बीजेपी द्वारा बनाया जा रहा है और धार्मिक ध्रुवीकरण करके लोगों के जो इश्यूज हैं उनको भटकाने की कोशिश की जा रही, उस समय भी हम एम्प्लॉयमेंट पे बात कर रहे हैं। हम बेरोजगारी जो 45 साल में सबसे ज्यादा उस पर बात कर रहे हैं। किसानों को जो 750 किसानों की जान गई, किसानों को एमएसपी क्यों नहीं मिल रही, उनकी आय दुगनी कब होगी, महंगाई कब घटेगी, हम इन इश्यूज पे बात कर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था जो कमजोर हो रही है, चाइना हमारी जमीन को कब्जा कर रहा है, हम इन पर बात कर रहे हैं। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन पर बात करें। तो उनसे कभी हमने समझौता नहीं किया। कोई भी नेता पार्टी में है वो उस सिद्धांत और विचार पर चलेगा। अब जिसको लड़ाई नहीं लड़नी है, जो भी कोई कारण गिनाने हैं, तो उसके लिए कुछ भी हो सकता है। और गांधी परिवार के प्रति इस देश के करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था है, क्योंकि हमेशा गांधी परिवार ने इस देश के हितों में काम किया, बलिदान दिया है, त्याग दिया है। कमलनाथ जी के बारे में चर्चाएं हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और वो कभी कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनके शब्द हैं। तो दूसरे और जो नेता गए हैं उनके अपने कुछ स्वार्थ होंगे, या वो जिस कांग्रेस के जो उद्देश्य सिद्धांत है लोगों के लिए लड़ना, उसमें वो फिट नहीं बैठ पा रहे होंगे, वो नहीं लड़ना चाह रहे होंगे, तो वो जा रहे हैं, ठीक है, जाए।
लेकिन कमलनाथ जी पार्टी नहीं छोड़ रहे, कमलनाथ जी पार्टी में हैं और रहेंगे। उनका एक गांधी परिवार के साथ विशेष रिश्ता है। उन्होंने इंदिरा जी के साथ, राजीव जी के साथ, सोनिया जी के सबके साथ काम किया है, तो वो कहीं जा नहीं रहे हैं। ये र्यूमर फैलाए जा रहे हैं, लेकिन हम पब्लिक इश्यूज पे बात कर रहे हैं, उसी पर बात करते रहेंगे। All right, Dr. Upadhyay, how would you like to respond to what the Congress spokesperson has to say? देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता जी जो बोल रहे हैं अवस्थी जी, ये शायद भूल रहे हैं। इन्होंने एक बात कही कि करोड़ों लोगों की आस्था है गांधी परिवार के प्रति। अरे भाई, कौन सी आस्था की बात करते हैं आप? जिन लोगों की आस्था थी वो क्षेत्र छोड़ गए थे, सोनिया गांधी भाग गई वहां से, हार की डर की वजह से राजस्थान पहुंच गए। जिस जनता ने उनको सत्ता का सुख दिया है, पूरे परिवार को सत्ता का सुख दिया, और उसी क्षेत्र को छोड़कर सोनिया गांधी भाग गई, इतना डर गई हार के मारे। ये जो बौखलाहट है, मैं बताऊं पत्रकार महोदया, इसका जवाब दे दीजिए। अवस्थी जी जैसे पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस समय कांग्रेस का कुनबा पूरी तरह से बिखर चुका है, केवल एक वजह से। उसके पीछे एक ही कारण है कि जो कांग्रेस का जो अपना संविधान है गांधी परिवार का, वो उससे अलग नहीं हो पा रही है कांग्रेस पार्टी, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी का पूरा कुनबा बिखरा जा रहा है। लेकिन मैं समझ नहीं रहा, एक तरफ जो कांग्रेस के युवराज हैं वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। अरे भाई, पहले अपने परिवार को तो जोड़ लो जो बिखर रहा है, टूट रहा है। Mr. Awasthi, how would you like to समझ सकता हूं respond? मैं, अवस्थी जी की मजबूरी होगी, लेकिन अवस्थी जी बखूबी जानते हैं के पास मैंने कि क्या कांग्रेस कहा का जो बिखराव है, टूट रहा है, वो मैं अभी इतनी देर से इसी बात को मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि हम पॉलिटिकल पार्टी, हमारा काम जनता के इश्यूज को उठाना है और सरकार में जो है तो काम करना है। आपने बीजेपी के प्रवक्ता से एक बार भी कोई पब्लिक रिलेटेड बात सुनी क्या? नहीं। अब मुझे बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर बड़ोदरा से वाराणसी आए थे तो क्या डर के मारे वजह से आए थे वाराणसी? क्या डर गए थे या वहां की जनता ने हरा दिया था इसलिए वो उत्तर प्रदेश आए थे? ये सब कुतर्क मत गढ़िए, इससे कोई फायदा नहीं होता ना, इससे कोई फर्क पड़ता है। राज्यसभा से नहीं गए हैं। दूसरा, सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, रनिंग कमेंट्री मत करिए। आपने बोला, मैं सुन रहा था। दूसरा, गांधी परिवार के प्रति कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता की निष्ठा है, इसका बीजेपी से क्या मतलब है? बीजेपी को इसमें क्या दिक्कत है? भैया, आप अपने वरिष्ठ लोगों को भगा देते हैं, उनको सम्मान नहीं देते, उनको अपमानित करते हैं, तो ये आपके अपने संस्कार होंगे। हम अपने वरिष्ठ को, हमारे जो सम्मानित हैं, और गांधी परिवार का इस देश के ऊपर त्याग है, बलिदान है। कभी 1989 के बाद गांधी परिवार ऐसा परिवार है जो कभी भी सत्ता में नहीं रहा, लेकिन हमेशा देश की सेवा की है। भोजन का अधिकार जो आप राशन दे रहे हैं, वो कांग्रेस का बनाया कानून है। शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, किसानों का 72,000 करोड़ रुपए कर्ज माफी, ये सब कांग्रेस ने किया। आप तो उद्योगपतियों का माफ कर रहे हो। 14.5 लाख करोड़ रुपए आपने उद्योगपतियों का माफ कर दिया, किसानों का माफ नहीं करेंगे। जाति जनगणना पे बीजेपी नहीं बोलेगी, तो हम तो कह रहे हैं ये धर्म पे बात करेंगे, कांग्रेस पे बात करेंगे, गांधी परिवार पे बात करेंगे, लेकिन पब्लिक की बात नहीं करेंगे। डॉक्टर उपाध्याय, लास्ट वर्ड टू यू। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा अवस्थी जी से, देखिए एक दो लाइन में आपको कहना चाहूंगा अवस्थी जी को, और आपके दर्शकों को भी बताऊंगा कि मुंगेरी लाल का जो घोड़ा बनाने के चक्कर में ना सभी घोड़े अस्तबल से खाली हो रहे हैं अब। और एक कहावत है इसमें, मूर्ख ही जब सभापति और महिमा मंडित होता हो, अज्ञानी के नेतृत्व के आगे देश भी खंडित होता हो। तो इनके हालात इस समय कांग्रेस का यही हाल है। एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने के चक्कर में पूरा कुनवा जो खाली हो रहा है। अब ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई, जनता साथ है तभी तो। देखो आप 2014 में किस तरह से जीत हुई भारतीय जनता पार्टी की, 2019 में किस प्रकार से जीत हुई, 2024 आपके सामने खड़ा है, इसमें पता चल जाएगा आपको जनता किसके साथ है। जनता देश की पूरी तरह से अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ। और जिस तरह, जी पत्रकार महोदय, जी बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? जी, जिस तरह से देखिए भारतीय जनता पार्टी की हमारे देश में, विश्व में लोकप्रियता बढ़ रही है, उससे पूरा विपक्ष जो है पस्त हो चुका है। अब इन्होंने बहुत रणनीति अपनाई, बहुत ही कारनामे इन्होंने किए, लोगों को भड़काया, देश के किसानों को भड़काया कि जाओ भैया कुछ करो, हमें बचा लो, हमारी कुर्सी डूब रही है, नैया डूब रही है, थोड़ी सी बचा लो। क्योंकि आपने कहावत सुनी है ना कि डूबता क्या नहीं करता। तो इन्होंने सब हथकंडे अपना लिए। लेकिन अब तो भैया देश की जनता का मूड एक ही तरफ है कि 2024 में कमल लाना है, फिर से एक बार मोदी सरकार को लाना है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.